Welcome back to Interact with Intellect. We have covered the first part of the subject, which was about strategic position analysis. Now we are entering into the second phase, where we'll discuss the details of strategic choices. Let's just recall what we discussed in the first chapter when we were talking about this particular course. We discussed that strategic decision making requires three major steps. In the first part, we will conduct strategic position analysis, through which we'll understand where we stand today. We have covered that part. The second part is about strategic choices. What are the options? What are the things that can possibly be, done under the given circumstances or under the conditions that we have identified in the first three chapters? In this very chapter, we'll take a look at a number of things which are basically related to the choices that we have to make. The first thing that we'll discuss is the value chain analysis. Value chain, as the name explains, is about the chain of activities that an organization has to perform in order to add value in its products and services. For example, when a garment factory receives cloth, which is obviously unstitched, it converts them through a series of processes into t-shirts. Through a series of process, when this t-shirt is actually prepared, people are ready to give a higher value to that t-shirt compared to that raw material which was the cloth. यूँ समझिए कि अगर आपको ईद पे तोहफे में कपड़े मिले और वो कपड़े जो हो उसकी जगह 1 किलो कॉटन मिल जाए कि लो भाई ये 1 किलो कॉटन आपकी ईद का जोड़ा है, तो आप कुछ ज़्यादा खुश नहीं होंगे. आप किसी दुकान पे जाएं और आप उनसे कहेंगे जनाब मुझे कपड़े खरीदने हैं और वो उसकी जगह आपको कुछ रॉ मटेरियल पकड़ा के दे दें, तो आप उसको पैसे देने को तैयार ऑब्वियसली नहीं होंगे. क्यों? बिकॉज उसकी जो यूटिलिटी आपको चाहिए, जो सर्विस आपको चाहिए, वो आप उससे हासिल नहीं कर सकते. सो अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस के एक टर्म आपने सुन रखी होगी, सप्लाई चेन. इफ यू लुक एट द टर्म सप्लाई चेन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. इफ यू टॉक अबाउट द गारमेंट इंडस्ट्री अगेन, सो कहीं किसी कोने में, किसी गांव में कहीं कॉटन उग रही होती है. उस कॉटन को मल्टीपल स्टेजेस में कन्वर्जन प्रोसेस से गुजार के धागे में कन्वर्ट करते हैं. देन इट इज कन्वर्टेड निटिंग या वीविंग करके उसको कपड़े में कन्वर्ट करते हैं. उसके बाद वो कहीं डाइंग में जाता है, फिर स्टिचिंग में आता है और फिर फाइनली आपको एक शर्ट की सूरत में वो या किसी भी फैब्रिक की सूरत में आपको वो मिलता है. इस पूरे सफर में, इस पूरे सप्लाई चेन में, स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ कॉटन डाउन टू द फाइनल प्रोडक्ट दैट यू आर मेकिंग, आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस का रोल देखेंगे. हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरह से अपनी लेवल पे रॉ मटेरियल्स लेती है एंड देन उसको कुछ प्रोसेसेस से गुजार के कन्वर्ट कर देती है इनटू एन आउटपुट विच इज वैल्यूएबल फॉर देयर कस्टमर. बाय द वे, कस्टमर का मतलब कंज्यूमर नेसेसरीली नहीं है. यानी हो सकता है कि वो कंपनी जो धागा बना रही है, वो उसका जो कस्टमर होगा वो कंपनी होगी जो उससे कपड़ा बनाएगी. जाहिर है वो कंज्यूमर नहीं है, बट फॉर द फर्स्ट कंपनी, जो कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, वो उसकी कस्टमर जरूर है. सो वैल्यू चेन का कॉन्सेप्ट ये है दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन मेक्स द प्रोडक्ट गो थ्रू अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज एंड थ्रू दीज एक्टिविटीज इट एड्स वैल्यू इन द फाइनल प्रोडक्ट. ये हमें हेल्प करता है in determining the price of the product, and it also helps us in finding out whether we are really adding significant value in the product or not. अगर हम इसकी डायग्राम को देखें, by the way, Michael Porter is responsible for developing this model, और उनका बड़ा रिसर्च है इस पे वैल्यू चेन एनालिसिस पे. माइकल पोर्टर ने स्टडी करके हमें बताया that every organization, by the way, this is more focused on manufacturing, services के लिए थोड़ा different हो जाएगा. In every manufacturing organization, when they purchase their raw material, they have to pay for certain logistics. Michael ने कहा that these payments that you pay in order to bring the raw materials to your factory site, these are called inbound logistic costs. Let's say
आपने आपकी फैक्ट्री अज्यूम करते हैं कराची में है और इसका आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया मे बी मलेशिया से। अब वो जो मलेशिया से आपने परचेज किया उसके ऊपर कुछ ना कुछ फ्रेट होगा, क्योंकि वो रॉ मटेरियल शिप होगा, चलेगा, आएगा, पोर्ट पे उतरेगा, ड्यूटीज पे करेंगे, चलता फिरता वो आपकी फैक्ट्री तक पहुंचेगा। सो वट एवर अमाउंट यू आर पेइंग in order to bring the raw material right from the supplier to your factory, वो सब कॉस्ट कहलाएगी इनबाउंड लॉजिस्टिक कॉस्ट। और ये द मोमेंट रॉ मटेरियल आपके पास पहुंचा उसके अंदर वो कॉस्ट तो ऐड इन एनी केस हो गई। जब इससे एक स्टेप आगे चले तो हमने कहा कि अब ये जो रॉ मटेरियल्स, मल्टीपल रॉ मटेरियल्स ऑर्गेनाइजेशंस के पास आमतौर पे होते हैं, दे देन कन्वर्ट देम इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट थ्रू सर्टेन ऑपरेशंस, थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है इसमें आप बेसिकली फिजिकल फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट चेंज करते हैं। अगर आप एक शुगर मिल में जाएं तो शुगर मिल बहुत सारे खेतों से गन्ना जमा करके एक जगह लेके आती है और फिर उसको क्रश करके उसका जूस निकालती है, उसकी फिजिकल फॉर्म चेंज हो जाती है। एंड देन आफ्टर अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस द जूस इज कन्वर्टेड इनटू समथिंग दैट इज कॉल्ड शुगर। ये जो ऑपरेशंस हैं ऑब्वियसली इनकी भी एक कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट तो कुछ नहीं है। देयर इज ऑब्वियसली सम एनर्जी कॉस्ट, देयर इज ऑब्वियसली सम मटेरियल्स कॉस्ट, देयर इज प्रोसेसिंग कॉस्ट, फ्यूल इसमें यूज होगा, लेबर यूज होगी इसके अंदर, और ये सारी चीजें अब क्या हो रही हैं, अब उस प्राइस में ऐड हो रही हैं जो आपने रॉ मटेरियल पे ऊपर खर्च की थी और उसको लाने पे खर्च की थी। माइकल पोर्टर ने कहा कि कहानी यहां पे खत्म नहीं होती। वंस यू हैव प्रोड्यूस्ड द प्रोडक्ट, then the next challenge is to provide that to the customer. That is, आपने कहा कि भाई हम लेट्स से हम कहते हैं कि हमने एक हम टी शर्ट्स बनाते हैं और हम टी शर्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, तो जब टी शर्ट्स बन गई तो अपनी फैक्ट्री से कस्टमर तक पहुंचाने का जो 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 कॉस्ट है वो आपके आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में आते हैं। दैट्स ऑल्सो एडेड इन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। इसी तरह से अगर हमारी कोई सेल्स एंड मार्केटिंग की कॉस्ट है, हम कोई एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, हम हमारी इफ देयर इज एनी पर्सनल सेल्स टीम दैट वी हैव, तो उसकी कॉस्ट भी इन एनी केस प्रोडक्ट की वैल्यू में ऐड हो जाती है। बाय द वे, हम प्रोडक्ट्स के ऐड देख के खुश बहुत होते हैं, कितने अच्छे अच्छे ऐड हमें दिखते हैं, सुपरस्टार्स उसमें दिखते हैं, बाद वक्त सुपरस्टार्स उसमें दिखती भी हैं। हाउएवर, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस सब की कॉस्ट मैं और आप ही पे करते हैं। व्हेन वी सी कि पेप्सी के एड्स में हमें बहुत सारे स्पोर्ट्स स्टार्स नजर आते हैं और हम बड़ी खुशी खुशी उनको देखते हैं और फॉलो करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, पेप्सी की बोतल जब आप खरीदते हैं तो उस एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट उसमें शामिल होती है। सो वी आर द वंस हु आर पेइंग फॉर दैट, राइट? बिकॉज वो वैल्यू एडिशन जो है वो इन एनी केस प्रोडक्ट की प्राइस में शामिल हो गया। द नेक्स्ट स्टेप इज सपोर्ट एक्टिविटीज। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं दुनिया में जिनको आप सेल्स के बाद आपको उसमें बैकअप सपोर्ट भी देनी पड़ती है। याद रखिएगा, इसमें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी डिटर्जेंट्स और टूथपेस्ट और ये शामिल नहीं होते। यहाँ पे ज्यादा चीजें शामिल होती हैं जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं, मसलन टेलीविजन्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एयर कंडीशनर्स। इसमें सर्विस का एक फैक्टर आता है, डिटर्जेंट के साथ सर्विस नहीं आती। ऐसा नहीं होता कि आप सर्फ एक्सेल खरीद के घर ले जाएं, कपड़े धोने हम किसी को भेज देंगे, वो यहाँ पे शामिल नहीं होगा। सो जब आप वैल्यू चेन की बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि सबसे पहले हम एक कॉस्ट ऐड होती है हमारे पास इनबाउंड लॉजिस्टिक्स की, दैट इज टू ब्रिंग द रॉ मटेरियल्स टू योर फैक्ट्री। देन देयर आर सम ऑपरेशंस, उसकी एक कॉस्ट ऐड हो जाएगी। देन देयर आर सम आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स यानी फिनिश प्रोडक्ट को अपने यहां से कस्टमर तक पहुंचाने की कॉस्ट, एंड उसके बाद हमारी सेल्स एंड मार्केटिंग, और अगर कोई सर्विस उसमें बैकअप सपोर्ट शामिल है तो उसकी कॉस्ट ऐड हो जाएगी।